Good morning, everyone. So, as we have already discussed, that as per the norms of CBSE, English paper is divided into three categories or three sections. The first section, section A, contains your unseen passages. The second section, section B, contains your writing section, which includes letter, story, diary entry, editing, omission, etc. etc. And the third part, the section C, it covers your literature. It covers both of your books. Alright. So today what we'll be doing is section B. We'll be doing section B, we'll be doing the writing part. Or writing part may majorly we'll discuss letters. What I've seen and what I've noticed that most of us do certain errors, and most of us make an error with reference to the format first. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले फॉर्मेट लिखने में ही कुछ ट्रबल्स होती हैं. So first of all we'll discuss the format, and post that we'll be discussing how to attempt a question and how to cover the letter body. Alright, starting with the basics, we can say letters are of majorly two categories. Alright, the first one is formal and the other one is informal. Alright, the formal letters, what are formal letters? Formal letters वो letters होते हैं जो हम लोग किसी भी ऑफिशियल पर्सन या किसी स्कूल में या किसी भी ऑफिशियल पर्पस से हम लोग लिखते हैं. जैसे कि we write a letter to the news editor, we write a letter to the municipal corporation, we write a letter to the school principal. Alright, so ये वो letters हैं जो formal letters की कैटेगरी में आते हैं. The next category is informal letters. ये वो letters होते हैं जो हम लोग अपने friend, family या relatives को लिखते हैं. The letters that we send to a friend, family and relatives are termed as informal letters, and the one we use officially are formal letters. Now ये classification, differentiation आप लोग काफ़ी छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है. What I will be starting off today is with the formal letter, and I will discuss the format of formal letter first. Format कैसा होता है formal letter का? Here is the format of formal letter. What you can do is you can just pause the video, you can jot down this format somewhere in your copy. Alternatively, I'll also be sharing this notes to you over the WhatsApp group. Alright, and in case you have any further difficulty, you can just drop me a WhatsApp. I'll clarify it and everything. Coming on to the format, the very first thing that we write here in is the sender's address. Sender's address का मतलब जो लेटर लिख रहा है उसको एड्रेस अपना देना होता है. Then we leave some blank space. आपकी कॉपी में मार्जिन, एक लाइन मार्जिन लाइन यहाँ पर blank छोड़ते हैं. Then we write date. The very number one is sender address, number two is date. Then again we leave a blank space. अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ तो आप भी एरो ही यहाँ पर पुट करिए. यहाँ एरो जैसा बिल्कुल पुट नहीं होता है. मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको मार्जिन लाइन एक छोड़नी होती है. ठीक है. Then the third one is the address of the addressee. जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं. सर फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं to the news editor, to will write editor the Times of India, New Delhi and so on. या जिसको भी लिख रहे हैं. If we are writing into the office in charge of municipal corporation, we'll write the office in charge municipal corporation, now or whatever location you have. Then the next thing that we write here in is subject. It is very important. बहुत सारे बच्चे इस पार्ट को स्किप कर देते हैं. You should not skip it. Subject कैसे लिखते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा. बट अभी केवल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. नंबर 5 इज सैल्यूटेशन. बहुत सारी जगहों पर आपको यहाँ पे आपको सिर्फ सर या फिर सिर्फ मैडम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा. बट जब लोग ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग टू समवन हु होल्ड्स अ डेजिग्नेशन, maybe he may be the principal, the editor, or anyone जो एक पोजीशन होल्ड कर रहा है.
So it's a courtesy to write the salutation in the format as respected sir or respected ma'am or likewise. Alright. Then we put a comma and then we'll start with the letter body. Letter body. Broadly speaking, ये letter body भी आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है. 3 पार्ट में आपको अपने पूरे कंटेंट को लिखना होता है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि ये लेटर किसके बारे में आप लिख रहे हो, किस रेफरेंस पे लिख रहे हो, एक्चुअल आपका कंटेंट आप क्या कहना चाहते हो, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए. ऑलराइट. देन नेक्स्ट वी राइट complimentary clause, that is thanking you, regards, etc. And then we write the sender's name, yours sincerely, faithfully or truly, and your name and designation अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, otherwise you can just simply ignore it. Okay, तो ये फॉर्मेट होता है. इस फॉर्मेट में कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम है you can just ask me. अभी I am giving you 1 second filler. आप देख लीजिए इस वीडियो को, चाहे तो पॉज कर लीजिए. नाउ आउटसाइड द स्क्रीन आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पॉज करने के बाद आप इस वीडियो को जो भी है सामने कंटेंट उसको आप देख लीजिए. ऑलराइट. सो मूविंग फॉरवर्ड आई विल गिव यू एन एग्जांपल नाउ. इसी एग्जांपल एक सॉल्व एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. हियर वी आर with the question. Anand witnessed an accident near the school gate where a child fell down and was hurt very badly. Sorry. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. Anand felt the necessity to enable the student to render the first aid to the victim. He decides to write a letter to the editor of the local daily about the importance of knowing first aid. Write a letter on his behalf using your own ideas and ideas from the unit health and medicine. Alright. अब ये लेटर, कोई भी लेटर का क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो उस लेटर के क्वेश्चन को समझिए. आनंद ने क्या किया? आनंद ने एक्सीडेंट देखा स्कूल गेट के बाहर जहाँ पे बच्चा गिर गया और बहुत सारे लोग तो आसपास खड़े हुए थे पर किसी ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की. इन द करेंट प्रेजेंट सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है? कोई भी एक्सीडेंट होता है आप तो रुक के देखते ज़रूर हो. आप लोग वीडियो बनाओगे, लोग आसपास की वीडियो बनाएंगे, व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे चीज़ें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो सारी पोस्ट भेजेंगे, बट कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा. ठीक है. देयर आर मल्टीपल रीजन, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. ऐसे ही कुछ आनंद ने विटनेस किया और आनंद चाहता था कि कोई ना कोई एक बच्चों को हेल्प करना चाहिए था, अपने साथी बच्चे को या अपने साथी फ्रेंड को, और वो तभी हेल्प कर पाता जब उसे फर्स्ट एड की नॉलेज होती. तो एक नेशनल डेली मतलब लोकल डेली मतलब लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ आनंद. आप कौन हो? आनंद. और आपको लिखना है कि कैसे फर्स्ट एड की नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़रूरी है. सो इफ द एड्रेस इज नॉट गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी राइट, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. अगर सेंडर्स एड्रेस अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज डेट. नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? डेट. देन विल राइट डेट. पोस्ट डेट. व्हाट विल राइट? लिटरेसी. इसको लिख रहे हैं एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड न्यू दिल्ली. उसके बाद हम लोग लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट. अब यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम आती है. जब सब्जेक्ट आता है तो आप सब्जेक्ट में लिखते हो राइट अ लेटर टू द एडिटर, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे का वैसा कॉपी कर देते हैं ना. वैसा कॉपी नहीं करना होता है, बिल्कुल नहीं करना होता है, बिल्कुल गलत होता है और इसमें बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं. आपको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में आनंद एडिटर को क्या बताना चाह रहा है? क्वेश्चन में आनंद एडिटर को बताना चाह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड. तो हम लोग सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ये लेटर किसके बारे में है? ये लेटर इस बारे में है कि फर्स्ट एड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ऑलराइट. सो वी गिव सब्जेक्ट एज इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग फर्स्ट एड. ठीक है. बस शॉर्ट एंड सिंपल. देन विल राइट द सैल्यूटेशन. रिस्पेक्टेड सर, may I have the honor to draw the attention of the authorities. अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, multiple other ways like I am writing this letter to draw your kind attention, या जैसा भी आप स्टार्ट करना चाहें, बट कुछ
चीज़ें हैं, कुछ लाइंस हैं या कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं स्टार्टिंग में जो आप अगर लिखते हो, जो आप पंच करते हो, तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और आपकी नॉलेज वहाँ पे अच्छी रिफ्लेक्ट होती है. सो ऑफ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड द पीपल थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर. जब हम लोग न्यूज़पेपर को लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि आपके स्टीम कॉलम, आपके स्टीम कॉलम मतलब आपके न्यूज़पेपर के एक छोटे से स्पेस हमें चाहिए जहाँ जिसके थ्रू हम अथॉरिटीज़ का ध्यान ड्रॉ करना चाहते हैं किस तरफ, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग फर्स्ट एड. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोग लेटर क्यों लिख रहे हैं. हम लोग लेटर लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक कॉलम चाहिए आपका जिससे हम अथॉरिटीज़ का ध्यान ला सकें किस तरफ, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द फर्स्ट एड. टुडे चाइल्ड, अब जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है वो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लेटर लिख क्यों रहे हैं, और वो पूरा का पूरा इंसिडेंट कि टुडे अ चाइल्ड मेट एन एक्सीडेंट, मेनी पीपल वर स्टैंडिंग, फाइनली चाइल्ड वाज कैरीड, जैसा क्वेश्चन में जो भी स्टोरी दी हुई है उस पूरी स्टोरी को आप लिखेंगे. देन द स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द प्राइमरी स्टेप्स. अब ये तो हो गया कि क्या हुआ. अब उसकी वजह से आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ द प्राइमरी स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड की नॉलेज स्कूल में पार्ट होनी चाहिए. इन द स्कूल करिकुलम इट शुड बी इंक्लूडेड. और ये सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होनी चाहिए, स्कूल करिकुलम में. इवन कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्ड टू मेक देम एफिशिएंट एट फर्स्ट एड. और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी होने चाहिए जिससे कि वो एफिशिएंट हो सके फर्स्ट एड. एट द सेम टाइम दे शुड हैव देयर ओन मिनी फर्स्ट एड बॉक्स एट देयर होम. और साथ में आप एक रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि बच्चों को उसके साथ क्या रखना चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. The parents should encourage the children for this purpose. They should know what to do in such situations where the victim is carried to the hospital. At times, the first aid can be life-saving. The government and the concerned educational authorities should initiate a step. आपने अपनी बात को conclude कर दिया ये पूरी कि concerned educational authorities को एक स्टेप इसके अगेंस्ट में इसके लिए लेना चाहिए. और आपने लास्ट में लिखा थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली और आपका नेम. ऑलराइट, यहाँ एंड दिस इज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, कुछ भी अलग चीज़ें नहीं लिखनी. आई होप एक लेटर को लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. कुछ अगर आपका है व्यू कि क्या सर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं या हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं या ये पॉइंट वैलिड है या नहीं है, तो वो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या तो फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. आई विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरी थिंग दैट यू विल आस्क फॉर. बेस्ड ऑन दिस आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ. आपको ये क्वेश्चन आपके कॉपी में करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, here it is. A newspaper reader in Srinagar wants to write a letter to the editor of local newspaper. It's very similar. आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए. I'll also share a screenshot to you guys in case you have any difficulty in reading it. Just let me know, drop me WhatsApp. I'll clarify it. ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है, आपको इसे कंप्लीट करना है. और अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है अभी भी फॉर्मल लेटर लिखने में, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आस्क मी. पोस्ट दिस हमारी आगे की क्लासेस में हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स, डायरी एंट्रीज, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा जो सेक्शन बी है CBSE के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो सेक्शन बी हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. बिकॉज दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा. सो stay home, stay safe and enjoy your day.